Let's move for JavaScript variables. JavaScript variables are containers for the storing data values. Okay. In this example, x, y, z are variables. Variable x is equal to 5, variable y is equal to 6, variable z is equal to x plus y. Now, from the example above, we came across that 5 is stored in the x, 6 is stored in the y, and z is stored in x plus y. We need to understand how to do this. Much like next example, we see that in the variable price 1, we have stored 5. In the variable price 2, we have stored 6. This is a string. Price 1, price 2 is string. And we see this is a very much, difference between JavaScript, see like this. आप इधर देखो, अगर आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में काम करते तो डायनेमिक कैसे आप रन करने के लिए सबसे पहले आप सम का एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के बाद इसको पास करते तब ये सम होता। यहाँ पे आप देखो प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, इट इज लाइक द वैल्यू ऑफ जेड एस प्लस जेड। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्केटिनेशन होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वहीं पे कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है, प्लस जेड। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आप इसको तो आप यहाँ पे देखो कि डायरेक्ट पासिंग करके वैल्यू में पुट कर दिया गया, 11 आ गई वैल्यू। अब इधर देखिए, प्राइस 1 5, प्राइस 2 6, टोटल प्राइस 1 प्राइस 2, फिर द टोटल इज, यहाँ पे भी देखिए तो टोटल की वैल्यू उसको कनेक्ट कर दिया गया, इसको 11 कर दिया गया, ठीक। अब अलजेब्रा programming, just like algebra, use a variable, uses programming algebra expressions, total price 1 price 2, आप कैलकुलेट करते हैं प्राइस 11 तक, ठीक है। अब देखिए what is identifier is something which we use to identify the variables with the unique name, that's it. We have literals, which is constant with a variable which is variable which changes this data. Now we have an identifier as well with a unique name. Identifier can be short XY, more descriptive like A, sum, total value. Identifier, there are some rules we have discussed yesterday. And Java identifiers are case sensitive. Like if there is capital RAM, RAM, and a small RAM, it is a two different identifier. Okay. Now let's move for the operator section. There is an assignment operator. Here the equal to sign is the assignment operator. Just the value of x plus 5 will just assign to this x value, just like that. And for the equal operation, we use double equal to. For the equal operation, we use double equal to. So JavaScript variables can hold numbers like 100 and text value like John Doe. Okay. JavaScript variable क्या करता है, वो 100 को होल्ड करता है और टेक्स्ट वैल्यू को होल्ड करता है। तो प्रोग्रामिंग के टेक्स्ट वैल्यू में आप देखेंगे कि भैया टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट स्ट्रिंग्स क्या है। प्रोग्रामिंग के में देखेंगे कि भाई टेक्स्ट में वैल्यू क्या है और टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स क्या है, ठीक। JavaScript can handle many types of data but for now just think of numbers and strings. उन्होंने कहा कि भाई JavaScript में आप बहुत सारे डेटा देख सकते हैं। अभी आप देखिए numbers और strings को, strings are written inside double or single quotes, numbers are written without quotes. Okay, strings कहाँ लिखे हैं, strings कहाँ लिखे हैं, within or without quotes. If you put a number in quotes, it will treat it as a string. अगर आप किसी नंबर को अगर आप स्ट्रिंग में डालेंगे तो वो कोई भी डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में किसी भी वैल्यू को आप डालेंगे तो वो स्ट्रिंग की तरह हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पाई 3.14 लिखा है, अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट पास करके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो पाई की वैल्यू 3.14%, ये आंसर ही है सी। अब देखो स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोट्स, नंबर्स क्या हो गए 3.14, पर्सन कौन है जॉन डोए, आंसर क्या है ऐसा ही, तो ये काम चलेगा। अब आप देखो इसका नाम से हमें जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से मतलब क्रिएटिंग ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट और डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। कोई वेरिएबल को क्रिएट करना है उसको क्या है डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नाम क्या है कार नेम, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे जी, उसमें असाइन करेंगे वैल्यू, कैसे असाइन करेंगे टेक्निकली उसको असाइन कैसे करेंगे, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से थ्रू। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लेते हैं कार नेम और वॉल्वो पे असाइन कर देते हैं, सिंपल वही काम यहाँ पे हो रहा है, असाइन कर देते हैं। और कार नेम जब आप क्लिक करेंगे प्रोग्रामिंग में तो वो वॉल्वो रिप्रेजेंट आएगा, बिकॉज यहाँ पे कार नेम की जगह वॉल्वो असाइन हो गया। और काम कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो होता है HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट है, फिर उसमें आप एक और फंक्शन अटैच करते हैं, फिर एक और फंक्शन अटैच करते हैं, और ये ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। उस ट्री में फाइनल जो चाइल्ड निकलता है वो कार नेम है। कार नेम में हमने यहाँ देखा है कि जो वेरिएबल है उसमें हमने वॉल्वो को पास किया है, वो यहाँ पे वो वॉल्वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्क्रिप्ट। अब आप स्क्रिप्ट के बिगिनिंग में देखिए वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। अब देखिए आप डिक्लेरेशन करते हैं वैल्यू इक्वल टू बराबर अनडिफाइंड। In computer programs, variables are often declared without a value. The value can be something that has been calculated or something that will be provided later, like user. A variable declared without a value will have the value undefined. अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की तो वैल्यू क्या हो जाएगी जी अनडिफाइंड। यहाँ पे देखिए कार नेम पिछले वालों में वॉल्वो था, यहाँ पे आपने कार नेम डिफाइन, यहाँ पे आपने कार नेम लिखा है सर, तो उस वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है अनडिफाइंड। रिजल्टेंट क्या लिख के आया है अनडिफाइंड। इस प्रोग्राम का आराम से समझिए, HTML से स्टार्टिंग हुई, ठीक है HTML से स्टार्टिंग हुई, आपने फिर बॉडी किया, बॉडी के अंदर आपने लिया जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एज अ हेडर, यहाँ पे आ गया जी हेडर, आपने फिर वेरिएबल को लिया जी वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू विल हैव अ वैल्यू आइडेंटिफाइड, ठीक है। फिर आपने जी डेमो लिया, फिर आपने अपने वेरिएबल में कार नेम असाइन किया, फाइनली कार नेम से ये चीज पॉसिबल हो। अब आइए declaring JavaScript variables. If you have declared a JavaScript variable, it will not lose its value. ये ना उसके वैल्यू नहीं लूज करेगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने डिफाइन किया था कार नेम में, फिर कार नेम को आपने जब कॉल किया तो आपने रीडिफाइन किया, तो ये उसी को लेके कैरी ऑन हो जाएगा और फाइनल प्रिंटिंग वॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं रीडिक्लेयर करने से जो प्रीवियस वैल्यू है वो अपने कंटेंट को लूज नहीं करेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक क्या होता है प्लस माइनस, अर्थमेटिक ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, अर्थमेटिक क्या क्या है भाई साहब, उसको समझ लीजिए थोड़ा। आप सिंपल डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं। आप स्क्रीन को, अच्छा हाँ, जब आप ऐड करते हैं नंबर्स को तो प्लस ऑपरेटर ऐड करता है, लेकिन जब आप स्ट्रिंग्स में प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट करता है। ये एक डिफरेंस है समझने लायक। यहाँ पे देखिए आपने ऐड किया तो ये नंबर दिया, आपने यहाँ पे क्या किया कॉन्केटिनेट किया है स्ट्रिंग को, यहाँ पे क्या किया आपने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया जो हमने कोई, ठीक है, ये समझ में होगा। अब आगे आइए, कोई भी नंबर, if you put a number in quotes, the rest numbers will be treated as strings and concatenated। अगर आप quotes में डालते हैं, यहाँ पे देखिए आपने नंबर लिखा है, इसको आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग के पहले जब प्लस लगेगा तो कॉन्केटिनेशन शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे
जब इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू इसको प्रिंट कराएंगे इस वेरिएबल के कैलकुलेशन डायनेमिक रन टाइम कैलकुलेशन होता है इसका रन टाइम कैलकुलेशन के बाद तो कायदे में अगर ये प्लस ऑपरेटर सिर्फ एडिशन करता तो होता 5 + 3 + 2 = 10, लेकिन अभी आया क्या है 3 + 2 5, यहाँ पे आ गया 5 और फिर कॉन्केटेनेशन हुआ 5 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और इसको और समझना है तो आप ये प्लस की जगह ठीक है आप इसको रन करा दीजिए, देखिए 5 5 के बीच में गैप हो गया। तो ये जो 5 है ये ये काम कर रहा है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और ये नंबर आके इसमें जुड़ा है एज अ कॉन्केटेनेटर, कॉन्केटेनेट हुआ है और बीच में हमने व्हाइट स्पेस दे दिया है तो ये व्हाइट स्पेस बीच में शो कर रहा है। तो अगर कहीं भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो मामला हो गया है कॉन्केटेनेशन का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन, रिमेंबर द जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर नेम मस्ट बिगिन विद a letter A to Z, a dollar sign or an underscore, ठीक है। So dollar sign is not very common, but हम professional program में use it as a for the main function of JavaScript, ठीक है। तो ये सब है, ये सब यूज करते करते आएगा भाई अपन को स्कोर से भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल, ये पूरा वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कार नेम, असाइन अ वैल्यू वॉल रो, कुछ ना करिए, कार नेम का वैल्यू अगर आपको लेना है तो वेरिएबल के आगे क्या डिफाइन होता है जी, कार, और उसमें वैल्यू क्या असाइन करनी है, वॉल्वो, सबमिट कर दीजिए आंसर, सही है, आंसर सही है, ठीक है। वही चीजें हैं, अब हमें देखना है आज ऑपरेटर, आपको क्या देखना है, ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो दो ऑपरेंड्स पे लग के एक नया रिजल्टेंट दे, वो एडिशन हो सकता है, वो सब्सट्रैक्शन हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, अब आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है यहाँ पे असाइनमेंट हुआ, यहाँ पे असाइनमेंट हुआ, फाइनली एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर ने इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे अपने वेरिएबल किया एक्स इज इक्वल टू 10, फिर एडिशन कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, 5 इसमें 5 असाइन हुआ, इसमें 2 असाइन हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ x प्लस वाई, जेड में क्या असाइन हो जाएगा 7, खत्म, जेड का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा प्लस ऑपरेटर का 7, मल्टीप्लिकेशन सेम काम करेगा, इसका 7 को हो जाएगा 5 क्रॉस 2 10। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या कौन कौन से होते हैं, एडिशन जी, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल को इसको यहाँ पे जब डबल मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जेएस अरिथमेटिक, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है जेएस अरिथमेटिक, उसमें पूरी तरीके से डिफाइन किया गया ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट मतलब कि उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, अब आप इसमें वैल्यू देखेंगे y x is equal to y, y is equal to, फिर आप इसमें कैसे चीजें हुई x plus x is equal to y, फिर x minus is equal to y कैसे चेंजेस, तो यहाँ पे आप देखो x minus equal to x multiply equal to x divide x division equal to, यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई,
x डिवाइड परसेंटाइल y, x एक्सपोनेंशियल y, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जॉन है, डोई है, और यहाँ पे बीच में गैप कर दिया गया, तो यहाँ पे टेक्स्ट जॉन डोई, रिजल्ट क्या है, जॉन डोई प्लस इक्वल टू, ये सब जब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और अपग्रेड करते जाएंगे तो ये सब प्लस इक्वल टू चीजें, अभी तो हम एक्सटेंडेड वर्जन में सीखते हैं, फिर कंपैरिजन, फिर हम उसको सीख लेते हैं कि जब प्रोग्रामर अच्छे हो जाते हैं तो उसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे आप देखो एक कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ये भैया इक्वल टू के लिए है, ये इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप, मतलब यहाँ पे क्या है, x इधर इंटीजर है और x इधर स्ट्रिंग है, तब भी इक्वल टू ले लेंगे, लेकिन अगर x इधर इंटीजर है और x इधर स्ट्रिंग है तो ये नहीं लेगा। ट्रिपल इक्वल टू मतलब इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप, इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप, इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, जेएस के बहुत सारे कंपैरिजन के मॉड्यूल्स हैं। ये क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ये आप पढ़े होंगे बिटवाइज कैलकुलेशन जब सी में किए होंगे, ये उसके बिटवाइज है, एंड और नॉट जॉर कैसे करते हैं, ये सब लिखे होंगे बिटवाइज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये हम लोग देख लिए हैं, और फिर आप कंपैरिजंस कैसे करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ये इक्वल टू है, यू नो, और ये डबल इक्वल टू में क्या है कि जब इसकी वैल्यू, देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है तो ट्रू आ रहा है, जब ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है तो फॉल्स आता है, ये नॉट इक्वल टू है, तो बस वही है, आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे कंपैरिजन, लेस देन इक्वल कर दिए, सिंपल मैथमेटिक्स है 678। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर नया है हमारे लिए, ये एंड है, set each bit to 1 if bits are 1, or set each bit to 1 if one of the bit is 1, ये कोई भी बिट अगर 1 है तो बोथ बिट 1 हो जाएंगे, set each bit to 1 if कोई भी एक बिट 1 है तो यहाँ पे उसको हम यस मान लेंगे, और ये एक एंड में क्या होता है, बोथ शुड बी करेक्ट, बोथ शुड बी टीपी, यहाँ पे क्या होता है, वन शुड बी, एटलीस्ट वन शुड बी करेक्ट। जॉर में क्या होता है, सेट ईच बिट टू 1 मतलब ट्रू इफ ओनली वन ऑफ द टू बिट्स इज 1, कोई भी अगर 2 है तो जॉर में ऐसा होता है। नॉट में क्या आता है, बिट्स को कन्वर्ट कर देंगे, 1 का 0 0 का 0, फिर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, पुश कर देंगे, तो 0 शिफ्ट है पुशिंग कॉम्पोनेंट, बस आप शिफ्ट कर देंगे। ये जावास्क्रिप्ट का यूज करता है, 32 बिट बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करता है, और ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज जॉर है, बिटवाइज चीजें, तो ये हमारे बिटवाइज कैलकुलेशंस हैं, आप इसको घर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब फर्स्ट ईयर में हमने जो चेंजेस जो समझा है वही। अब आप आइए असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखें कैसे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे भी हम लोग पूरी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट आउटपुट्स, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम इन अ डेटा टाइप इम्प्रोवाइज करते हैं, इन अ डेटा टाइप के, इस डेटा टाइप, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेटा टाइप के थ्रू ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप की डेफिनेशन में, डेटा टाइप के कैलकुलेशन में, अगर डिफरेंट डेटा टाइप है तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और ये हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को लेकर। तो हमारा जो टॉपिक था, एक्चुअली, ठीक है, वो था ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट और कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट, वो हम लोगों ने आज कवर कर लिया। अभी हम लोगों को पढ़ना है डेटा टाइप, पूरे कैलकुलेशन में उसके बाद पढ़ना है कि जी लूपिंग कैसे करना है। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें यहाँ पे देखिए बूलियन कंपैरिजन भी कर लिया, कंडीशंस भी देख लिया,
हम लोग फिर यहाँ पे देख लेंगे कि स्विच फॉर और लूप कैसे कराते हैं। अभी ये भी देख लेंगे, कंपैरिजन देख लिया, कंडीशंस देख लिया, स्विच कैसे लगाते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, बिटवाइज भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग इस पूरी समरी का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो समरी है वो आएगा डेटा टाइप। तो अभी उसको हम होल्ड कर दे रहे हैं डेटा टाइप का। पहले ये जो बी है, जो हमारे मतलब हम कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो कोर्स के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब में पहले हमको लूपिंग कवर करना है। और ठीक भी है कि एक बार लूपिंग कैसे मैनेज होती है उसको हम लोग समझ लेंगे तो आगे हमारा समझना और जो कैलकुलेट जो चीज़ें हैं वो और आसान हो। चलिए अब आप इधर देखिए, JavaScript switch statements. Switch statement is used to perform different action based on different conditions. Switch क्या करता है? Different actions, different conditions. Switch script statement क्या करता है? Different actions करता है, different statements. Switch case, switch के अंदर cases define होते हैं और उसके अंदर breaks define होते हैं। और वो एक को evaluate करता है, अगर वो condition सही है तो वो break कर जाएगा, नहीं हो तो दूसरे में कूद जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग में, जैसे न्यू डेट डॉट गेट है, केस 0 संडे आ गया, ठीक है, केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे। तो जिस हिसाब का केस होगा वो मैनेज हो जाएगा। जैसे आज का दिन क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ पे हमने केसेस डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि एक डेट मेथड है और वहां से हम लोग गेट डेट हम लोग डेट मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से डेट पता चल जा रही है, ठीक है। तो डेट पता चल जा रही है इधर से, और फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आज पता चल जा रहा है कि टुडे, अगर आप डेट ये डेट मेथड हटा देंगे हमको नहीं पता चलेगा, समझ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो इस मेथड के थ्रू ही हो रहा है। ये तो केसेस डिफाइन किए गए हैं, तो केस हुआ ना कि संडे नहीं है, मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, आज कौन सा है, वेडनेसडे। कल अगर हम इसको करेंगे तो थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे। ये स्विच लूप। अब लूप क्या आप जानते हैं कि ब्लॉक ऑफ स्टूडेंट, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स में एग्जीक्यूट करने का नाम ही क्या है, लूप। लूप्स आर हैंडी, इफ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन, ईच टाइम हैव अ डिफरेंट वैल्यू। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स आर फॉर क्या करता है जी, loops through a block of code for the number of times. For and loops through the properties of object. For of loops through the value of attributable objects. While loops through a block of code with the specific condition is true. Okay. Do while also loops through a block of code where this is specified condition is true. आप समझिए इस बात, ऐसे ही आप चीजों को आगे प्रोसेस करेंगे फॉर लूप, ठीक है। Statement 1 execute one time, statement 2 execute with the different time, statement 3 every time. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, उसकी कंडीशन के हिसाब से ये पहली दफा एग्जीक्यूट होगा। ये डिफाइन करेगा कि एग्जीक्यूशन कितना चलेगा, और ये डिफाइन करेगा कि ये रन टाइम एग्जीक्यूशन चलता कैसे रहेगा, ठीक है। राइट सर। तो आप देख रहे हो कि इधर आई प्लस प्लस कर रहे हैं, आई का इनिशिएशन 0 करके आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 से कम होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाया, यहाँ पे लूपिंग स्ट्रक्चर में आई इक्वल टू 0 एक बार चलेगा, ये कंडीशन देगा और ये हमेशा चलेगा, बार बार चलेगा, इसको इटरेशन तब तक चलेगा जब तक इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा। ये हो गया लूप, ये हो गया फॉर लूप। फॉर लूप में आपने जब चीजों को डाला, अब वेरियस कंडीशंस हैं, आप उसमें यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे आप स्टेटमेंट 2 देखे, आपने लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सिर्फ 2 कंडीशंस डाले, ठीक है। तो सीधे कंडीशन पे बात आएगा, सीधे स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ऑप्शनल, रिटर्न द ट्रू, द लूप विल स्टार्ट ओवर व्हेन द रिटर्न्स फॉल्स एंड लूप विल एंड। तो आप देखो पहले में था आई इक्वल टू 0 डाल लो, यहाँ पे तो आपने जी कंडीशन ही नहीं डाला, कहाँ से स्टार्ट करना है, इनको लेंथ कैलकुलेट करना था कार्स की, और यहाँ पे लिखा है बी वेरिएबल टी है 2, तो 0 1 2 दूसरा
कार्स का एक एरे बनाया यहाँ पे, ये एरे का साइन होता है ना, जिसमें BMW, वॉल्वो, सब, फोर्ड डाला, ठीक है। फिर उन्होंने लिया जी आई की जिसका 2 वेरिएबल है, आई में 2 को उन्होंने पास किया, ठीक। और कार्स डॉट लेंथ, लेंथ से कार्स की लेंथ कैलकुलेट की, ठीक है। और आई की वैल्यू में जिसकी लेंथ, मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है, 2 से जिसकी लेंथ ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये लेंथ क्या क्या यहाँ लेंथ कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, कार्स डॉट लेंथ, लेंथ जो है बाय डिफॉल्ट डिफाइंड फंक्शनैलिटी है जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को जावा स्क्रिप्ट में कैलकुलेट करता है। तो ये जो लेंथ है इसके अंदर इसका कितना वैल्यू आएगा, 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3, इसका क्या आएगा 0 1 2 3 0 1 2 3। अब आप बताइए, अब आप यहां से आप देखो इधर, अब आप देखो इधर, यहाँ पे 2 से चीजें बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी कौन है, 2 से चीजें बड़ी होनी चाहिए, देखा आई मस्ट बी, लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन आई, आई की वैल्यू क्या दे रखा है जी 2, टेक्स्ट में क्या डालेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसका ब्रेक कर देंगे। तो 2 की वैल्यू कौन कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू 2 से इंडेक्सिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रहा है वो एरे के लेंथ पे चल रहा है, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। यहाँ पे क्या कह रहा है, आई की लेंथ जो है आई की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए और उसमें प्लस प्लस उन्होंने कर दिया, लेंथ में डाला है 2, ठीक है। 2 के 2 जो है आई से बड़ी होनी चाहिए, जब 2 आई से बड़ा होगा तो क्या आएगा 3, जब 3 आएगा तो क्या आ रहा है, सब 0 1 2, और उसके बाद क्या, उसके बाद जब आई प्लस प्लस हो रहा है तो इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू एक्चुअली, ये इंडेक्स वैल्यू फिर क्या जा रही है 4, तो क्या आ जा रहा है भैया 3 और 4, तो 4 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या है, सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था ये लूप और कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपने आई प्लस प्लस भी नहीं डाला, सीधे कार की लेंथ उठा के इनिशियलाइज कर दिया है। तो कार की लेंथ जब इनिशियलाइज कर दिया है तो ये सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करेगा, लेंथ कैलकुलेट करेगा तो भैया आई और इनिशियलाइज किया 0 से, अब इसको इनिशियलाइज कीजिए 2 से, अब देखिए क्या करता है, तब भी देखिए इनिशियलाइज कर रहे हैं 2 से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो सब और 4 दे रहा है, क्यों 2 के बाद ही इनिशियलाइज कर रहा है। अब इसको इनिशियलाइज कीजिए 4 से, 0 रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों 1 2 3 4 रिजल्टेंट 0। अब इसको इनिशियलाइज कीजिए लेस देन और इक्वल टू, अब इसको इनिशियलाइज कीजिए आई इज इक्वल टू 0 से, नहीं कुछ आ रहा, ठीक है। समझने के लिए है ये कि ये 4 वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल में आपने इनिशियलाइज किया, उसकी लेंथ ली, जो भी लेंथ आई से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इंडेक्सिंग 0 से बड़ी है, आपने उठा के उसको प्रिंट कर दिया, बराबर नहीं बड़ी, बस। और कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये एक स्टेप इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो यही है समझाने का था कि फॉर लूप कैसे कर देता है। Often three statement increase the value of the initial variable. This is not always the case. JavaScript does not care. The statement 3 is optional. Can do anything negative, positive, or anything else. Java statement 3 can be omitted like when you increment the value. आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि तीनों स्टेटमेंट जावा फॉर लूप के सेम है, कोई बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जावा 2 इवोल्यूट कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो, तो आपको लूप के अंदर ब्रेक डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो लूप जो होता है ना वो वो इंफिनिटी लूप में चला जाता है। अगर कंडीशन नहीं होती है लूप में तो आपको ब्रेक अंदर स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द थिंग। ये इस बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा।
इस बारे में आप जानते होंगे, सी में कभी कभी आप लूप में अंदर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो इन्फिनिटी लूप में चला जाता है, सिस्टम हॉल्ट हो जाता है। अब ये देखिए, एक बार फॉर समझ गए तो फॉर इन लूप क्या होता है जी? फॉर के अंदर जो कंडीशंस लगा रहे हैं, फॉर ऑफ स्टेटमेंट थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो फॉर के अंदर एक्स इन अ पर्सन, ये देखिए एक्स जो है एक वेरिएबल है, इन पर्सन क्या है, वो एक तरीका, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या करते हैं, इन देखो दो तरह, इसके पहले ये चीज आप नहीं पढ़े होंगे, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। ये आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स के काम आता है और ये थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट काम आता है, ठीक है। चुपचाप शांति से काम होगा। तो जब ऑब्जेक्ट की एप्लीकेशन, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका है लूपिंग करने का कि आप ऑब्जेक्ट्स को भी लूप के अंडर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेरिएबल ऑफ द आइटरेबल और कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। लूपिंग, आप एरे की लूपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप स्ट्रिंग की लूपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वाइल डू वाइल, वाइल एक बार चलता है, वाइल चलेगा ही चलेगा। डू वाइल में क्या होता है कि एक बार चल के अगर कंडीशन सही हुई तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये है, मतलब ये एक नई चीज फॉर आप लूपिंग में यहाँ पे सीख सकते हैं, फॉर ऑफ में कि आप ऑब्जेक्ट्स को भी एज अ लूप डाल देंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसके दिमाग में रख के लिए, जैसे हम आगे कुछ सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये वाइल लूप के बारे में। वाइल डू वाइल क्या होता है? वाइल में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जब आप वाइल इतना तो वो ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। डू वाइल में क्या होता है कि एक बार तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद वो कंडीशन लगेगी। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट एक बार होगा, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ेगा। फॉर और वाइल में बहुत बार कंपैरिजन आता है, ये तो खैर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। ये आपके हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कैसे लगाते हैं। आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ब्रेक रोक देता है स्टेटमेंट को, कंटिन्यू जंप कराता है, फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करा देता है प्रोग्राम। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, जब 3 हुआ तो प्रोग्राम ब्रेक कर देगा, 0 1 2 बस प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखो आपने 3 के बाद उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करा दिया, 5 6 7 8 9 10। यही है आपका पूरा ऑपरेटर लूपिंग, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं।